سب سے پہلے تو مہمان خصوصی ہماری میڈم، میں ان کے پاس گیا، ان کو ریکویسٹ کی تو انہوں نے بڑا ٹائم بھی دیا اور بات میری سنی بھی، اور آپ نے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو بھی جو ہے نا ایک لیٹر بھی سرکولیٹ کر کے ان کو بھی جو ہے نا یہ ساتھ لے کے آئے. میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو میرے خاص طور پہ جو ہے نا بازو بنے ہوئے تھے ٹی ڈی سی پی والے، پی ڈی سی والے، یا سیویئر کے طور پہ ایسے گارڈن کی صورت میں، پاکستان ٹورزم کی صورت میں، اس طرح بہت سی این جی اوز ہیں، کچھ نام رہ بھی جائیں گے، میں معذرت خواہ ہوں ان لوگوں کے لیے. میں انتہائی جو ہے نا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ باری کا شکر گزار ہوں، ساکری کا شکر گزار ہوں، این ایس پی آر ہمارے ملک فتح خان صاحب، میں ان کا ممنون ہوں کہ وہ بھی میرے بازو بنتے ہیں، ان کے بھائی ملک لال خان. مثلا اس طرح اگر دیکھیں تو کراچی سے ادھر میرے خیال میں 1 درجن کے قریب لوگ بیٹھے ہیں جو کراچی سے تشریف لے کے ہیں. ٹھیک ہے، گلگت بلتستان سے آئے ہوئے ہیں، کچھ ہمارے پاس فارن سے بھی لوگ آئے ہوئے بیٹھے ہیں، جو ہمارے پاکستانی فارن میں وہ بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو میں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں. جتنے آنے والے مہمان ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں، تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے ہیں. ہماری جو تنظیم ہے یا فاؤنڈیشن ہے، اس کا ایک ہی جو ہے نا، اس میں ہمارے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ جو ہم اس کو پرموٹ کرنے کے لیے، یہ جتنی تنظیمیں ہیں اس میں رہ گیا سی فوڈ، ہمارا جو مین جو ہے نا کردار ہے سی فوڈ کا، ایک جو ہے نا وہ جو اولپ پہ کام کر رہی ہے گورنمنٹ کا ادارہ، تو اس کا بھی بڑا ہاتھ ہے اس کی پروموشن میں. تو ہماری فاؤنڈیشن بھی اس کو پرموٹ کر رہی ہے. یہ آج کا فنکشن 8واں فنکشن ہے اسی جگہ پہ. ٹھیک ہے، تو بہت پیمانے پہ ہم کوئی 14 بندے تھے جس وقت پہلے دن ہم نے اس کا اسٹارٹ کیا تھا، اور آج الحمدللہ جو ہے نا ابھی شام 5 بجے تک یہ میلہ سجا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو مین مقصد یہ ہے سر ایک پل کا کردار ادا کرنا. اس میں سائنٹسٹ بھی ہیں، کوئی فارمر جو آئے ہیں وہ اگر کوئی ان کے سوال ہیں یا عام کسی آدمی کا سوال ہے تو سائنٹسٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ جو ہے نا آپ کو پوری گائیڈ لائن دیں گے. اس میں واٹر مینجمنٹ آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں مثلا اور بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں ایگریکلچر کے. ٹھیک ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ہیں، تو ان سے بھی آپ مشورات کر سکتے ہیں، آپس میں جو ہے نا ان سے بھی سوال کر سکتے ہیں، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اس میں کچھ جو ہے نا مشینری بنانے والے 2 ساتھی وہ بھی آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جو اولپ کی میں نے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ مشینیں دیکھیں اور اس پہ کام کریں. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ بھی ہیں. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا تعارف ہو جائے. اسی طرح بہت سے اسٹال جو ہے نا اس میں جو اولپ سے کو ویلیویٹ کر رہے ہیں، کام اس پہ کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی جو ہے نا وہ لوگ بھی اپنے اپنے پروڈکٹ لے کے آئے ہیں. تو مین مقصد یہ تھا کہ ان سب کو اکٹھا کرنا، کہ ایک دوسرے تک ہمارا پیغام بھی پہنچ جائے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں، جو بزنس کے طور پہ ہم نے جو ہے نا یہاں پہ جو ہمارے ہیں یہ کچھ ادارے جو ہے نا چکوال میں، ان کو بھی اسی لیے مدعو کیا ہے کہ وہ اس سیکٹر میں آئیں اور وہ جو ہے نا اس کو آگے اور جو ہے نا بڑھائیں. اس کو جہاں پہ ہماری کو غلطیاں کوتاہی ہیں، میں تو عموماً دوستوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، اس میں کریکشن کریں ہمارے. ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ ہم کو غلط ہیں یا اس کو اور بہتر کرنے کے لیے. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہوں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں، جو بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے، میرے لیے وہ جو ہے نا وہ ایک بڑی آنر بھی سمجھ لیں، عزت بھی، اور میں ان کا مشکور ہوں. میں جو ہے نا ان کا شکریہ تہ دل سے ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی، تھینک یو، السلام علیکم. آلپ ریسرچ اینڈ ٹریننگ، یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک ادارہ بنایا ہے. ہمارا جو ایگریکلچر ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں 27 ادارے ہو رہے ہیں جو مختلف فصلوں پہ یا مختلف جو ہے ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ادارہ صرف اور صرف آلپ پہ کام کر رہا ہے، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف جو ہے ان کی جو کاشتکار ہیں یا زمیندار حضرات ہیں، جو لوگ آلپ پہ کام کر رہے ہیں، ان کی خدمت کرنا ہے. اس کے لیے ہم پوری ویلیو چین پہ کام کر رہے ہیں. اگر اس کی کلمے ہم دے رہے ہیں، کلموں کے علاوہ ہم پودے دے رہے ہیں. 100 روپے کا ایک پودا ہے، اور جتنے بھی آپ لینا چاہیں ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ اس کی ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں، کس طرح اس کی جو ہے فصل کو اگایا جاتا ہے، کس طرح لگایا جاتا ہے، یا اس کی کس طرح حفاظت کی جاتی ہے، اور اب اس کا پھل آ جائے تو کس طرح توڑا جائے، کس طرح اس کی پروڈکٹس بنائی جائے. اور اس کو آگے نکالنے کے لیے سب سے پہلی مل بھی سی فوڈ نے یہاں لگائی تھی، جو کہ اٹلی سے ہم لائے تھے. پنجاب گورنمنٹ نے یہ پہلی مل پاکستان میں لگائی تھی، لیکن اس وقت 28 کے قریب ملیں لگ چکی ہیں. تو میں جو ہے شکر گزار ہوں
जो आलिफ फाउंडेशन वाले हैं, क्योंकि ये हमारी हेल्प इस तरह कर रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान में कहीं भी ऑलिव था, ऑलिव फाउंडेशन वाले गए हैं और इन्होंने अच्छी ऑफर जिम्मेदार को की है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि जिम्मेदार भी खुशहाल हो रहा है। और अगर किसी के पास अभी भी एक भी पौधा मौजूद है, वो कहीं भी अगर कहना चाहे कि मैं बेचना चाहता हूँ, तो आज जो है ऑलिव का बाग जो है मौजूद है, लेने के लिए से तैयार है। इसके अलावा अगर वो इसको 10 गुना ज्यादा करके बेचना चाहे, तो इसके लिए भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस साल हमने 2 ट्रेनिंग इस वक्त कर चुके हैं और ये ट्रेनिंग जो है वो इटली से लोग आके दे रहे हैं। तो इस तरह से वो अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन करके इसको ज्यादा कीमत से भेज रहे हैं। तो हम जो है वो हाजिर हैं जिम्मेदार ज़राअत के लिए, और बाकी जितनी वैल्यू चेन है इसमें सारे स्टेक होल्डर जो है ना वो हमारे लिए जो है ना उनके साथ मिल के खाना बचाना काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह किसी की भी जरूरत हो हमारे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़ैतून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुझे फ़ख्र है कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जिसने 1991 से बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक मिशन का आगाज किया कि हमने जैतून को जो है इस मुल्क में इंशाअल्लाह अज़ीज कामयाब करके दिखाना है। और मुझे फ़ख्र है अपने तमाम उन सीनियर्स पे जिनसे हमने सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये जो एक स्टार्ट किया हुआ एक मिशन है, आज पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह उस एक तनावर दरख्त बन चुका है और ऑलिव रेवोल्यूशन की गूंज जो है पूरे मुल्क में सुनाई देती है। जब शुरू में हमने ये ब्रांडिंग का काम किया, बेसिक वैरायटीज एवेल्युएशन से लेकर जब हम आगे बढ़े और जब हमने ये सीखा कि जब तक हम इदारे से बाहर जो है इसको एज एग्री बिजनेस में नहीं लाते, तो तब तक हमारी इस सोसाइटी को इस पब्लिक मनी, ये जो हम उस पब्लिक मनी को लगाकर रिसर्च कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ कि 15-16 के करीब ये जो सारे आज आप ब्रांड्स देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। मुझे एक दोस्त ने सवाल किया कि आज बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्टॉल बड़ा छोटा है, तो मैंने कहा मैं मुतमईन हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो 2016 से हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया, आज हम R&D गैप पे फोकस कर रहे हैं, आज हम ग्रेजुअली बैकफुट पे आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज हमारे ये जो पार्टनर्स हैं, जो फार्मर्स हैं और जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये पूरे मुल्क में इन ब्रांड्स को सिविल सोसाइटी तक पहुंचा रहे हैं। मैं 2014 में बारी में एज ऑलिव साइंटिस्ट जो है मेरी पोस्टिंग हुई। एग्रीकल्चर में मैं 1998 से हूँ, पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सबसे बड़ा काम किया है मेरी नजर में वो ये है कि एक ऐसी क्रॉप जो कि यहाँ की नेटिव क्रॉप नहीं है, उसको एक पूरे अल्हम्दुलिल्लाह रीजन में ना सिर्फ मुतारिफ करवाया है, बल्कि ये देखिए 2016 में जब हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सर्वे किया तो वी आइडेंटिफाइड कि 8 लाख एकड़ इस एरिया में रकबा ऐसा है जहां पे जो मार्जिनल लैंड्स हैं, जहां पे जैतून की काश्त हो सकती है। और मुझे फख्र है आज मेरे बहुत सारे कोलीग्स, बहुत सारे साथी ये जो जिक्र कर रहे थे गाजी साहब, शाह साहब के हम 14 लोग थे, मैं भी उनमें शामिल था कि जो पहला फेस्टिवल हमने करवाया था कि हमने सिविल सोसाइटी को एंगेज करना है, हमने यूथ को एंगेज करना है, हमने प्राइवेट सेक्टर में कनेक्टिविटी देनी है। हमने जो है ये अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ना सिर्फ वो जो एक प्लांट था, जो एक मिशन था, आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। मैं उस टीम का मेंबर था जिसने 13,20,000 पौधा पोठोहार में और फार्मर के साथ एक ऐसा ट्रस्ट ब्रिज कायम किया कि आज भी मेरा फार्मर, ये पूरा पंडाल इसकी गवाही देगा, बारी में अन्य अगर बारी में उसको बुलाया जाए बहुत इज्जत और बहुत वकार महसूस करता है, बारी में उसको रिस्पेक्ट मिलती है, नॉलेज और स्किल मिलती है। मेरा इदारा पूरे पाकिस्तान से कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहे 11 के करीब ट्रेनिंग्स हम मुनकिद करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज ऑलिव वैली पाकिस्तान एक फेसबुक ग्रुप है जिसका मैं खुद एडमिन हूँ, मेरे कोलीग्स भी हैं। 9,400 के करीब लोग पूरे पाकिस्तान से मुंसलिक हैं। किसी की कोई क्वेरी, बेशक वो ऑलिव की नर्सरी से मुताल्लिक हो, पूरी वैल्यू चेन की हमारी कोशिश होती है कि वो सेम डे रिप्लाई हो। और ये इसमें ऑलिव फाउंडेशन का किरदार और स्पेशली
آج مجھے جن کی وساطت سے اعظم نذیر صاحب, اللہ ان کی قبر کو روشن رکھے. یقین کیجئے کہ اگر 1 کلو انہیں پتہ چلتا تھا کہ سوات کے فلاں زمیندار کے پاس ہے, تو وہ بندہ وداؤٹ کنسیڈرنگ کہ جو ہے یہ جی 1 کلو کی کتنی کاسٹ آئے گی, زیتون کی محبت اور زیتون سے عقیدت میں وہ بندہ ٹریول کرتا تھا. اور بہت ساری یہ جو ان کی محبت ہے, بہت ساری عقیدت ہے. یہ ایک میرا دعویٰ ہے کہ یہ پہلا پروجیکٹ ہے پاکستان کا کہ جس میں ایک ریسرچ سائنٹسٹ نے ایک بیڑا اٹھایا کہ ہم نے اس ملک میں اولیو کلچر کو پروموٹ کرنا ہے. اور آہستہ آہستہ صرف عموماً ہمارے ہاں ریسرچ کے ادارے جو ہے وہ پروڈکشن تک محدود رہتے ہیں, ورائٹی بنا لی, اپنا کام ختم ہو گیا. لیکن اس میں الحمدللہ ہم نے کنزیومر تک کو ٹارگٹ کیا ہے, اور آج یہ آپ کو جو سکسیس نظر آ رہی ہے, میں امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ جو فیسٹیول ہے یہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہر فارمر کے فیلڈ پہ ہوگا. اور میڈم صاحب کی موجودگی سے میں چند گزارشات ہیں کہ ہم نے اب تک یہ جو برانڈنگ کی ہے, ہم نے کوالٹی پہ فوکس کرنا ہے. اور ابھی یہ ڈرائیو جو ہے جس کا ہم سن رہے ہیں ملک میں, اگر اس جو یہ جو اسپیشلی یہ خطہ ہے اور آل اوور پاکستان, ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بیٹھے, ہم 50 ایکڑ سے لے کر 1000 ایکڑ تک لوگوں کو لیز پر زمین دیں, سافٹ لونز دیں, تاکہ یہ ہے کہ جو ہم نے ایک ریسرچ میں ایک ڈیو پروسیس کو فالو کر کے ہم نے ایک چیزیں یا ٹیکنالوجی سامنے لے آئے ہیں. تو اب یہ جو 6-7 ارب ڈالر کا ہمارا امپورٹ بل ہے, ہم اگر اس انداز سے کمرشل فارمنگ کی طرف, کمرشل ماڈل فارمز کی طرف جائیں گے, تو میرا خیال یہ ہے کہ میڈم صاحب یہ ایک پورا ریولوشن جو ہے یہ مینی فولڈ ہمیں ایک اکنامک بینیفٹس دے گا. اس اولیو ریولوشن کو چکوال میں ہی پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ٹیگ کیا ہے, ہمیں انٹرنیشنل اولیو کونسل کی ممبرشپ ملی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کو تھوڑا سا ٹیکس رجیم میں فیسیلیٹیٹ کریں. نئے لوگ ہیں اور ایسی کراپ ہے جس کا ایگزسٹنگ یہاں پہ موجود نہیں ہے, ان کو فردر سروس پروویژن جو ہے کہ گراس روٹ لیول پر ہم لوگوں کو یہ بتائیں اور یہ سکھائیں کہ آپ نے اولیو کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. اور پھر ان کی جو برانڈنگ ہے اور ان کی جو سٹوریج ہے اس میں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا مشکور ہوں, میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اولیو فاؤنڈیشن جو ہے اس کا مشکور ہوں کہ جس نے یہ ایک میلہ سجانے میں یہ 8واں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا, اور ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں, جو ہمارا میں سمجھتا ہوں میڈیا ہے, اس نے وہ پیوٹل رول ادا کیا ہے جو بحیثیت سائنٹسٹ ہم نہیں کرتے تھے. تو ان تمام کے علاوہ میں سمجھتا ہوں میرا جو ایک نالج ہے جو ہم نے ایک مشن کے طور پر لیا, میں سمجھتا ہوں میرے لیے نہیں بلکہ آج جو آنے والے مہمان ہیں جن کو زیتون کی محبت کھینچ لائی ہے, میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ ہم مل کے ان کے لیے ایک زوردار کلیپ کریں تاکہ یہ جو سفر ہے یہ الحمدللہ العزیز یہ اور سپیڈ سے جو ہے رواں دواں ہو. بہت شکریہ. بہت خوشی اور بہت اطمینان کی بات ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس ایک ایسا علاقہ موجود ہے کہ جہاں پر ہر طریقے سے اولیو کی پروڈکشن کلائمیٹیکلی, انوائرمنٹلی, سوئل کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھا جائے تو سوٹیبل ہے. اور مجھے یہاں 1-2 سائنٹسٹ اور ریسرچرز کے ساتھ بات کر کے یہ پتہ چلا کہ پاکستان اسپین اور اٹلی کے لیول کی اولیو گرو کر سکتا ہے, اور ہمارے پاس اتنا یا اس سے زیادہ پوٹینشیل ہے اولیو کو پروموٹ کرنے کا. پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں میں کتنا جذبہ بھی ہے. اسی وجہ سے یہ فیسٹیول ارینج کیا گیا کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم آرگنائز کریں کہ جس میں اسٹوڈنٹس بھی آئیں, فارمرس بھی آئیں, ریسرچرز بھی آئیں, بزنس کمیونٹی آئے, سول کمیونٹی, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو. اگر کوئی اولیو کی پروڈکشن یا گروتھ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, ویلیو ایڈیشن کرنا چاہتا ہے, تو یہاں پہ ڈفرینٹ اسٹالس لگائے گئے تھے. یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ میں صرف یہی سمجھ رہی تھی کہ اولیو سے اولیو اور اولیو آئل بھی بن سکتا ہے, لیکن اولیو کی روٹیاں, اچار, برفی, بسکٹس, اولیو کی گرین ٹی اور اس طرح کی بہت سی پروڈکٹس, جیمس وغیرہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی. دس از واٹ از کالڈ ویلیو ایڈیشن, جب آپ کسی ایک چیز سے ملٹیپل پروڈکٹس بناتے ہیں. اور اسی طرح کی جو ملٹیپل پروڈکشن ہے اس کا یہ زمانہ ہے. جتنی آپ اچھی پروڈکٹس بنائیں گے, ان کو ان میں ویلیو ایڈیشن کریں گے, ان میں فردر انہینسمنٹس کریں گے, ان میں فلیورز ایڈ کریں گے, کوالٹی کو امپروو کریں گے,
वैरायटी लेके आएंगे तो उसकी मार्केट इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, और मैं बहुत ज़्यादा मुबारक देती हूँ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस फेस्टिवल। ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेशन की हर तरीके की सपोर्ट ऑलरेडी आपके साथ है, और इसके बाद भी इंशाल्लाह मज़ीद आपको जहाँ कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मुझसे किसी ने ये पॉइंट आउट किया जहाँ पर मैं शहद के स्टॉल्स को विजिट कर रही थी कि जो बेरी का दरख्त है उस पर बहुत अच्छा शहद होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दरख्त काट दिया जाता है, और हमारे पास चकवाल में लावा के इलाके में इसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी है और लगा भी हुआ है। तो मैंने अभी इस बारे में डायरेक्शन दे दी है कि चकवाल में नाउ ऑनवर्ड्स बेरी का दरख्त काटने पर हम पाबंदी लगा देंगे, ताकि हम फर्दर जो हनी है उसकी फर्दर उसको हेल्प आउट कर सकें। Anything else which you think that is required to be done by the district administration in any capacity, the office of the deputy commissioner and district commissioner, Kalakahar, or any other officer of the administration is always available at every forum. I'm very much grateful to all of you. Thank you very much. पहले तो मैं मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और जितने ओले लवर्स हैं, ओले फैमिली के दोस्त बाब आज यहाँ पे शिरकत जिन्होंने की है, सबको वेलकम जी। और ये रोशनियों का मोहब्बतों का जो ये कारवां हम लेके चले हैं अपने सीनियर्स की निगरानी में, इंशाल्लाह ये जारी और सारी रहेगा। और वैल्यू एडिशन के तौर पे जितने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से बैंड आए हुए हैं उनको भी मैं वेलकम करता हूँ, तमाम मेहमानों को, और जितने साइंटिस्ट हैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास तौर पे मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर रमज़ान साहब को, अल्लाह ताला ने उनको जो है ना एक उससे नवाजा है। और ये जो हमारे डॉक्टर साहब थे जो इस दुनिया से चले गए हैं, ये सारी उनकी काविशें थी, और उन काविशों को भी हम आगे लेके चल रहे हैं। और एक बार फिर मैं अगेन मैडम साहब का और तमाम इनके साथ जो आए हुए ऐसे साहिबान और बाकी भी जो गवर्नमेंट के दोस्त बाब हैं, मीडिया के दोस्त बाब हैं, तमाम हमारी फैमिलीज़ हैं, ओले लवर्स हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। जी नाज़रीन, अभी आपने जो देखा यहाँ पर स्टॉल्स के विज़िट भी करवाए गए। डिप्टी कमिश्नर ने से जो है वो ऑलिव डे के हवाले से जो है वो नेशनल ऑलिव डे के हवाले से उसका जो इफ्तिताह भी किया। तो अभी इस वक्त मेरे साथ जो सेंचुरी एग्रो फार्म के जो ऑनर हैं वो मौजूद हैं, डॉक्टर आसिफ साहब। इनसे हम पूछेंगे, ये माशाल्लाह इन्होंने भी यहाँ पर स्टॉल लगाया, तो इनका जो ये सेंचुरी एग्रो फार्म है इसका मेन मकसद क्या है, और ये जो हमारी आवाम है, ये शहरी, उनके लिए क्या क्या जहाँ वो सहूलियात दे रहे हैं। जी आसिफ साहब, ये बताइएगा, माशाल्लाह आप यहाँ पर आए हैं, बड़ा ज़बरदस्त आपका ये था स्टॉल भी लगा हुआ, तो आप तो ये पहले फेस्टिवल के बारे में बताइएगा, फिर अपनी जो सेंचुरी एग्रो फार्म है उसके बारे में बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आसिफ अली, GMJ7 ग्रुप आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म की वसात से बताना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक तो है कि बहुत अच्छा इवेंट है, जिस तरह वो अभी सारे टीम मेंबर उनके बता रहे थे, जो पूरा ग्रुप है, कि बहुत अच्छे तरीके से ये 8वीं दफ़ा सालाना इनकाद हो रहा है। तो हमारा इसमें ये सेकंड टाइम हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सेकेंडली मैं आपको अगर बताऊं कि जो सेंचुरी एग्रो फार्म एग्जैक्ट मेरे बिहाइंड आप देख सकते हैं, मीडिया वॉल पे भी आपको इसका लोगो नज़र आ जाएगा। हम असल में एक्चुअली बिल्डर्स हैं, J7 बिल्डर्स अक्रॉस द पाकिस्तान, एक फ़ेमस बल्कि टॉप 2 बिल्डर्स में हम आ रहे हैं। तो उसमें हमने एक नई चीज़ लॉन्च की है कि एग्रीकल्चर और टूरिज़म को हमने कंबाइन की है। तो हमारा ये सी पैक रूट पे तराब इंटरचेंज से उतर के लकड़ मार एक गांव है, उसमें 7,500 कनाल अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो लैंड हमने एक्वायर कर ली है, उस पे ये हमारा ओलिव सेंचुरी ओलिव एग्रो फार्म है, जिस पे हम एग्रीकल्चर ओलिव को भी इंशाल्लाह उसको करेंगे, ग्रो करेंगे, उगाएंगे, और जो हमारे इंशाल्लाह उसके जो आगे फर्दर जो प्रोसीजर्स हैं उसको भी एक्वायर करेंगे। उसके साथ साथ हमारे उसके कॉटेजेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, हॉर्स राइडिंग है, AVT क्वाड बाइक वो है, और छोटे मोटे वहाँ जो रेस्टोरेंट चीज़ें। तो हम इसको मल्टीपर्पज़ लेके चलेंगे ताकि मुल्क और कौम भी तरक्की करे, हमारे जो किसान फार्मर भाई हैं वो भी, और जो ज़र मुबादला है उस पर हम कमा सकें। अच्छा आसिफ साहब, आप ख़ुद भी माशाल्लाह से ऑलिव पर बड़ा काम करने जा रहे हैं। ये बताइएगा कि जिस तरह अभी आप सैगल फार्म पे आए हो, यहाँ पर एक सैगल फार्म का आपने जैतून बाग भी देखा होगा, जिसको यूसुफ शाह साहब जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो आपके साथ कोई और भी जो यहाँ पर जिस तरह ऑलिव की तंजीमें बनी हुई हैं, ऑलिव पाकिस्तान है, सेवा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये भी आपके साथ पार्टनरशिप में हैं, या आप अकेले ही से ऑलिव के प्रमोशन के लिए लगे हुए हैं? नहीं जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इनके साथ मिल के लर्निंग, टेस्टिंग, डिबगिंग इस फेज़ में हैं, मतलब वो टीचिंग ट्रेनिंग फील्ड में। लेकिन J7 ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह अपना उनका ज़ाती एक प्लेटफॉर्म है सेपरेट, जो कि प्राइवेट सेक्टर है, प्योरली प्राइवेट सेक्टर। तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि आप हमारे साथ मतलब 1 कनाल तक की भी ज़मीन परचेज़ कर सकते हैं रजिस्ट्री इंतकाल के हिसाब से, और उसका जितना बेनिफिट आएगा वो आप हमारे जो मतलब नंबर पे या वेबसाइट पे J7 ग्रुप है, हमारा जो हेड ऑफिस है इस वक्त इसमें ब्लू एरिया
अपना उसमें हमारा हेड ऑफिस है बवरले सेंटर में, आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, प्रॉफिट भी है, और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टर है उसको हम लेके चल रहे हैं। अच्छा, जिस तरह कि जो पंजाब हुकूमत है वो जो किसान हैं या फार्मर्स हमारे हैं उनको सब्सिडी पर पौधे फराम कर रही है, ठीक है, कि क्या आपकी जो एक ये सेंचुरी एग्रो फार्म है, क्या ये भी उनकी मामनत कर रही है पौधे हासिल करने के लिए? अगर किसी फार्मर को आपके पास आना पड़े तो क्या आप उनको भी कम कीमत पर ये लेकर दे रहे हैं, या आप खुद जो है मरहून मेहनत हैं पंजाब गवर्नमेंट के? अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा एक टेक्निकल क्वेश्चन है, लोग अक्सर पूछते रहते हैं। अभी फ़िलहाल हम जो है ये एग्रीकल्चर फील्ड में फ्रेशर हैं, न्यू हैं, क्योंकि हमारा ट्रैवल टूरिज़म कंस्ट्रक्शन इसकी फील्ड ज़्यादा है। तो हम ये है कि अभी ख़ुद हम इनसे पौधे परचेज़ कर रहे हैं, और हमारे साथ ऐसी भी कुछ टीम्स हैं, कुछ गवर्नमेंट के बंदे हैं, कुछ इदारे हैं जो हमें फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो आके साथ साथ वो सॉइल टेस्टिंग हमारी अप्रूव हो गई। फर्दर जो उसके प्रोसीजर्स होते हैं, हमारे पास प्रॉपर PhD इस पे स्कॉलर्स हैं जो हमने हायर किए हैं, वो हमें इस पे प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं, और थ्रू प्रॉपर चैनल हम स्टेप बाय स्टेप एक ईच एंड एवरीथिंग लेके चल रहे हैं। तो इस वक्त हम खुद जो है ग्रोइंग सेक्शन में जो है प्लांटेशन वगैरह चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा आसिफ साहब, ये बाग लग गया, बाग से फल आना शुरू हो गया, मेन फिर आ जाता है इसका मशीनी काम। तो आप ये बताएं कि चलें पूरे पंजाब की अगर आप देखें तो चकवाल में एक जो है वो इसकी मशीन बारी इंस्टीट्यूट में लगी हुई है, ज़रिए तहक़ीक़ाती इदारा में। तो आप कैसे कोई देख रहे, क्या कोई आपका आइंदा का प्लान है फ्यूचर में, क्या आप इस तरह की कोई मशीन लगाने जाएंगे? जी बिल्कुल, इस पे हमारा जो बारी में ही लास्ट इवेंट हुआ था उसमें हम भी थे, और मेरे साथ हमारे CEO साहब भी थे, अली मलिक साहब, तो उनसे भी इस चीज़ पे डिस्कशन हुई। तो इंशाल्लाह हम प्रॉपर अपना जो मतलब इक्विप प्लांट होता है इंटरनेशनल इंपोर्ट करके इंशाल्लाह हम लगाएंगे। अच्छा आसिफ साहब, ये बताइएगा कि आवाम में इतनी अभी वो आगाही नहीं आई, क्योंकि चलें बड़े फार्मर्स आते हैं, बड़े लोग आते हैं फेस्टिवल्स में जिनके पास इतनी इस्तात होती है, वो ऑयल ख़रीद के ले जाते हैं। जो आम पब्लिक है जो अपने घरों में अभी ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रही, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि उनके पास ज़मीन अगर हो तो कितनी ज़मीन से जो है वो ये जो ऑलिव का पौधा है उसको लगा कर इसका फ्रूट हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल जनाब, माशाल्लाह बड़े अच्छे टेक्निकल क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। असल में मेरी कोई ज़िंदगी की कोई 11 बहारें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री ओवरसीज़ गुजरी हैं, अरब कंट्रीज़ में कुछ टाइम गुजरा है, तो मैंने वहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी रिसर्च किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है, सीखा हुआ है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बल्कि इससे भी पहले मैं कहूँगा कि इसका कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया हुआ है। 30वें सिपारे की सूरह 3 ज़ुनत है, वह 3 वज़ैतून, और उसके बाद ये है कि ये सेहत के लिए भी हर एस्पेक्ट से वो है फ़ायदेमंद है, फ्रूटफुल है, यूज़फुल है और मुफीद है। तीसरी चीज़ ये है कि इसके अब डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी रिसर्च की थी कि लोगों को सिर्फ ऑलिव का पता था और उससे एक या दो प्रोडक्ट्स। अब माशाल्लाह जिस तरह अभी वो स्टेज पे DC साहिबा भी कह रही थी कि इसका सिरका, इसका कहवा, इसका गुड़, इसकी बर्फ़ी, इसका मुरब्बा, इसका जैम, इसके बिस्किट्स और इसके ऑयल से रेवड़ी चीज़ें, तो इस पे हम भी साथ साथ एजुकेट हो रहे हैं और लोगों को भी एजुकेट भी कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं, ताकि इसका आगे फर्दर चीज़ें मतलब फ़ायदेमंद और यूज़फुल सब। लास्ट सवाल आपसे ये है कि चलें पौधा लगा दिया जाता है, पौधे से फल ले लिया जाता है, पौधे के जो पत्ते होते हैं उसको ज़ाया कर दिया जाता है। ये जो पौधा है जैतून का, इसके पत्ते भी कारामद होते हैं या इसको भी हम ज़ाया जी कर देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हमारे एक डॉक्टर ज़िया साहब हैं, पेशावर तराब फार्म में उसके वो हेड भी हैं, वो हमें लीड भी कर रहे हैं, स्पेशली ऑलिव में उनकी PhD भी ऑलिव में है। उन्होंने हमें इस चीज़ को थोड़ा डीपली बताया था कि इसके जो पत्ते भी हैं उसको ड्राई करके इसका प्रॉपर कहवा बनता है, जो जिस तरह हम ग्रीन टी पीते हैं, तो उसका ये यहाँ डिफरेंट स्टॉल्स पे आपको मिल भी रही होंगी। तो मीन्स जिस चीज़ का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कह दिया, फिर फ़ायदा भी बता दिया, फिर उसकी कसम भी खा दी, फिर हदीस शरीफ में भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑलिव जैतून पसंद था, वो नोश भी फरमाते थे। तो मीन्स फिर ये बरकत रहमत ही रहमत है और बरकत ही बरकत है। तो वाकई इसके पत्ते में भी बहुत है। और मुझे एक डॉक्टर ने कहा था, मेडिकल डॉक्टर ने, बल्कि मैं नॉन मुस्लिम इसके रिसर्च पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था ही इज़ फ्राम इंडिया, तो वो कह रहे थे कि ये दिल के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर आसिफ साहब ने बड़ी तफसीलन जो गुफ्तगू में बताया कि ये जो पौधा है जैतून का, इसकी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी जो है वो कसम उठाई रखी है और इसके बड़े फ़वाइद हैं। ना सिर्फ ये पौधा फ़ायदेमंद है, इसका फल और इसके पत्ते भी जो हैं वो कई मर्ज़ में जो है वो शफा का सबब बनते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप फार्मर और जो आम लोग हैं जिनके पास जगह हैं और उनको इतनी आगाही नहीं है, तो आप ज़रूर जो है वो अपने जो वो पौधे लगाएँ, घरों में भी लगाएँ। इसके एक पौधे से भी आप जो अपने घर से वो कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं और ऑयल का इस्तेमाल जो है वो आपकी बहुत सारी बीमारियों से वो छुटकारा भी बन सकता है।